السلام علیکم یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو دا ولاگ آف حبیباز بیوٹی سیلون اینڈ اکیڈمی۔ اچھا، آج کا دن سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا حلوتاس والوں کے ساتھ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ارینجمنٹس ہوئی ہیں۔ انہوں نے چھوٹا سا انٹروڈکشن دینا تھا اپنے این جی او کے بارے میں، تو انہوں نے ریسنٹلی ہی حبیبہ بیوٹی سیلون کے ساتھ کولیبریٹ کیا ہے اور ان کا ایک نیا پروجیکٹ آیا ہے جس میں یہ لوگ 25 ضرورت مند لڑکیوں کو فری بیوٹیشن کورس دیں گے، جن کی ڈیوریشن ہے 4 منتھ۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن اپنا دیا حبیبہ بیوٹی سیلون میں، اسی کے لیے حبیبہ بیوٹی سیلون میں ایک پراپر سیٹ اپ ان کے لیے کیا گیا۔ یہ ہماری اب انٹرنس ہے، میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم نے کس طرح سیٹ اپ کیا ہوا تھا اپنے سیلون کا۔ اچھا، تو آج انٹرویو بھی تھا، جن لڑکیوں نے فارم سبمٹ کیے تھے ان کا انٹرویو تھا، اور ساتھ ہی ساتھ حلوتاس والوں نے ایک موٹیویشنل لیکچر رکھا تھا جس میں وہ لڑکیوں کو موٹیویٹ کر رہے تھے اور تھوڑا بہت اپنے این جی او کے بارے میں بتا رہے تھے۔ چاہیے ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ، تاکہ تھوڑی باتیں ہیں ہماری حلوتاس سے ہم آئے ہیں، میں اور ہمارے پلیز آئے ہیں، اور حلوتاس سے انٹرنیشنل کی طرف سے کے حوالے سے، اور آپ لوگوں کی اس میں بھی اضافہ ہوگا، نالج میں بھی آپ لوگوں کو بھی کافی باتیں پتہ چلیں گی جو شاید آپ لوگوں نے کبھی نہ سنی ہو یا کسی نے نہ بتائی ہوں، تو کافی نئی چیزیں آپ لوگوں کو یہاں پہ سننے کو ملیں گی۔ تو کچھ ٹائم ہم آپ کا لیں گے، پھر اس کے بعد ہم آپ لوگوں کے ساتھ ادھر انٹرویو بھی اسٹارٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے کلیگ علی شیر صاحب ہیں، وہ آپ کے ساتھ آپ کو کچھ بتائیں گے، تو ذرا ان کی باتیں آپ لوگ ہے۔ آپ سارے ایجوکیٹڈ بندے ہیں یا ان ایجوکیٹڈ بھی ہیں؟ سب ایجوکیٹڈ ہیں؟ سب ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کوشش کریں، بہتر ہے کہ ہم تھوڑی سی اس پروجیکٹ کی تعارف کرائیں۔ پروجیکٹ ہے اسکلز فار ڈیسنٹ امپلائمنٹ، یعنی وہ ہنر اور وہ روزگار جس میں ایک بندہ یعنی مزدور، اگر آپ کا ہوں، میں ورکشاپ میں کام کرتا ہوں، فار ایگزامپل موٹر بائک ورکشاپ میں، تو اس ورکشاپ میں مجھے کون سی ایسی جو ہارڈشپس ہے، تکالیف ہے، وہ جو میں اس کا سامنا کر رہا ہوں۔ مثلاً میں دھوپ میں کام کر رہا ہوں، اس کے علاوہ میری کوئی ایسی ریٹن کنٹریکٹ نہیں ہے امپلائر کے ساتھ کہ آپ نے مجھے اتنا تنخواہ دینا ہے، اتنا دینا ہے، یہ بھی نہیں ہے، اور میری ٹائمنگ جو ہے وہ 7 گھنٹوں سے زیادہ ہے، مجھے ریسٹ کا جو ہے موقع نہیں دیتا۔ یہ ورکشاپ کے ساتھ چھوٹی موٹی جو پرابلمس ہے، ہارڈشپس ہے، تکالیف ہے، وہ ریلیٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں ایگزامپل لوں ایک فیمیل کی، اور اگر وہ ڈومیسٹک ورکر ہے، گھروں میں کام کر رہی ہے، کچھ ویجز کے اگینسٹ تھوڑی وہ تنخواہ یا کہیں یا پیسے کہیں، اس کے لیے اگر وہ کام کر رہی ہے، تو اس پروجیکٹ کا مقصد یہ ہے کہ وہ کتنے یا کس قسم کے حالات سے وہ جو ہے وہ گزر رہی ہے، اور کون سی جو تکالیف ہے، جو ہارڈشپس ہے، وہ سامنا کر رہی ہے۔ اس میں بہت سارے ایسے ہیں کہ تکالیف ہیں، ہم تھوڑی بہت یہاں پہ ڈسکس بھی کر لیں گے۔ تو یہ پروجیکٹ ہے، یہ جو مقصد یہ ہے تاکہ ان کی زندگی کو ہم مطلب اچھا کریں، سکلز کے ساتھ ان کو ہم سکلز دیں گے، اور سکلز سے ان کی کاموں میں بہتری آئے گی۔ کیسے آئے گی یہ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ کچھ ویڈیوز بھی ہم نے چلانی ہے، اور کچھ ٹیکسٹ کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ میں استاد ہوں اور آپ شاگرد ہیں۔ یہ ہم مل بیٹھ کے پارٹیسپیٹری ڈسکشن کریں گے، اور مقصد صرف یہ ہوگا کہ جو بچے ہیں، جو چائلڈ لیبر ہیں، جو مزدور بچے ہیں، خاص کر 14 سے 18 سال تک، کہیں پہ بھی وہ اگر کام کر رہے ہوں، تو وہ کون سے مسائل سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں، انہی چیزوں پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور وہ کیسے ہم نے امپروو کرنی ہے۔
कौन कौन से इदारे जो है यहाँ पे KP में और खासकर पेशावर में, इसमें जो की डिपार्टमेंट है लेबर डिपार्टमेंट इसी के ऊपर काम कर रहा है ताकि बच्चे जो हैं उनकी जो हालत है ताकि वो ठीक हो। तो ये छोटा मोटा वो तारुफ है जो मैंने आपके सामने रख दिया। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपरली डिसेंट वर्क और सेफ्टी स्टैंडर्ड। ये अल्फाज थोड़े बड़े हैं। डिसेंट वर्क, अच्छा काम, माकूल रोजगार, ये वो है मजदूर की जो राइट्स है उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसकी जो सोशल प्रोटेक्शन है उसमें रिस्क, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उसके जो ऊपर जाने के जो स्टेप्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक बंदे में अगर सलाहियत है और हम या एम्प्लॉयज़ वगैरह जो भी है वो न चाहते हो कि ये बंदा आगे जाए, तो हम कैसे उन बच्चों को आगे लेके जाएंगे। तो 2-3 जो है वो ऐसे पिलर्स हैं, ऐसे स्टेप्स हैं कि इनको हम अगर तारुली डिस्कस करें, इस पे हम बात करें मिल बैठ के, तो हम बना सकते हैं वर्क प्लेस जहाँ पे हम काम कर रहे हैं ये हम ठीक करा सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो यहाँ पे जो डिसेंट वर्क लफ्ज लिखा गया है, पढ़े लिखे बंदे यहाँ पे जो बैठे होंगे वो इसको ज़्यादा मतलब समझ आएगी कि डिसेंट वर्क है क्या। डिसेंट वर्क जो है ये सिर्फ कमाने का नाम नहीं है ताकि हम जाएं और किसी वर्कशॉप में, किसी सैलून में या किसी भी जगह जहां पे हमें वेजेस मिलती हो हम जाएं वहां पे काम करते हैं, ये डिसेंट वर्क नहीं है। डिसेंट वर्क ये है कि लायबल वेजेस, इनको माकूल तनख्वाह अगर मिले, अगर वो एम्प्लॉयर उस बच्चे को दे तो ये डिसेंट वर्क है। इसके अलावा सेफ वर्किंग कंडीशन, अगर बच्चा है और वो धूप में काम कर रहा है या सड़क के किनारे पे काम कर रहा है तो वो बहुत से खतरात से उनका सामना है उन बच्चों का। मैं हूँ एक डॉक्टर का है और मेरे हाथों में वो ग्लव्स नहीं है, या मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ मेरे हाथों में ग्लव्स नहीं है, तो मेरी अपनी ज़िंदगी है जो है वो खतरे में है। वो ग्लव्स के ज़रिए हम बचा सकते हैं कि ये ग्लव्स जो है मैंने पहनी, या अगर कोई बच्चा वेल्डिंग का काम कर रहा हो और उसके गॉगल्स नहीं है, वो चश्मे वगैरह नहीं है, नेट वगैरह गॉगल्स नहीं है, तो उसकी आंखों को जो है मसाइल जो है वो लाहक हो सकते हैं, उसकी ज़िंदगी जो है वो खतरे में आ सकती है। या अगर कोई बच्चा है वर्कशॉप में गाड़ी के नीचे बैठ के उसमें काम कर रहा हो, तो हमें तो ये समझ है कि इसकी ज़िंदगी में जो है वो खतरात है, जो छुपी हुई खतरात है वो है। हमने उन खतरात को कम करना है। हम खत्म नहीं कर सकते लेकिन हम उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इक्वल ट्रीटमेंट, अगर 2 बच्चे फॉर एग्जांपल इस सैलून में काम कर रहे हैं, एक को उनकी जो कैपेसिटी है, तालीम है, हुनर है, ये सब एक है, लेकिन हम वेजेस डिफरेंट देते हैं। इसको हम 40,000 देते हैं, दूसरे को हम 20,000 के मुताबिक, उसकी स्किल्स के मुताबिक उसको जो है वो तनख्वाह मिले, वो ट्रीटमेंट मिले, वो चीज़ें मिले जो लाज में है, जो कवानीन में है उस बच्चे के लिए। सोशल प्रोटेक्शन, सोशल प्रोटेक्शन में ये है कि मैं इंश्योर हूँ, फॉर एग्जांपल मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंश्योर हूँ, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी इंजरीज आ जाए, जख्म आ जाए या कोई वाक़या पेश आ जाए जिसमें बंदे को जो है वो डेथ, वो मर जाए, अगर उसकी फैमिली को कुछ भी ना मिले, तो ये डिसेंट वर्क नहीं है। उसके उस बच्चे की जो पेरेंट्स है या उसके जो केयर गिवर्स हैं, उसके जो अपने हैं, ताकि उनको बाद में वही जो इंश्योरेंस है वो मिले। या हम कहते हैं कि
सैलरी के साथ तनख्वाह के साथ और कुछ बेनिफिट्स हैं, फ़ायदे हैं। फर्ज करें ईद आ जाए, हम ईद बोनस दें, तो ये भी उनकी सोशल प्रोटेक्शन है, वो बच्चों के लिए कुछ भी खरीद सकता है उन थोड़े पैसों से। तो डिसेंट वर्क ये है कि उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो है। द रिस्क, काम के दौरान 1 घंटा रेस्ट, 14 से 18 साल तक के लिए 7 घंटे काम है और उसमें 1 घंटा जो है वो रेस्ट है। अगर हम 7 घंटे रेगुलर काम करें तो ऐसा नहीं है, थकावट आ जाएगी, हमें बहुत से खतरात जो है फिजिकली वो सामने आ जाएगी। तो इसके लिए बेहतर है कि हम लेबर डिपार्टमेंट की लॉस को पढ़ें, उनके कवानीन को पढ़ें, मजदूर के जो हुकूक है वो पढ़ें। एक शॉर्ट वीडियो क्लिप है। आपने मुझे क्या मैसेज है इस वीडियो में? इसलिए कि ये जो साउंड है इसमें अभी साउंड नहीं है, वो पिछला वाला था वो अलग नहीं हुआ था। तो आप देखें जो डिसेंट वर्क है, डिसेंट वर्क के ऊपर हमने बात की, वो देखें। और साथ साथ जो है मॉडर्न स्लेवरी है, मैं अंग्रेजी में जो है उसके जो ट्रांसलेशन है वो मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ों को मैं आसान से आसान बनाऊँ। तो ये 2 पिक्चर्स हैं। ये पिक्चर जो है ये भी एक वर्क प्लेस है और ये भी एक वर्क प्लेस है। उधर जो है अगर आप देखें तो ये जो 2 बंदे हैं उनके कैप्स हैं, उनके जो साउंड वगैरह है ना नॉइजी, उसके अगेंस्ट जो डिवाइस यूज होते हैं वो उन्होंने पहनी हुई है, साथ जैकेट भी है और फर्स्ट एड किट भी साथ है। तो वहाँ पे उनकी ज़िंदगी को कोई ऐसा खतरा जो है वो दिखाई नहीं दिखता। और ये जो दूसरा है इसमें ये एम्प्लॉयर है, अगर हम देखें पर्स करें ये मालिक है या उसी का दुकान है, और ये जो है बच्चे हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, टेलर्स हैं। तो उन्होंने एक स्टिक उठाया हुआ है, ये ऐसा लगता है जैसे ये गुलामी का जो है वो काम है। तो दोनों में फ़र्क है। इदारे जो है यही चाहती है कि बच्चे की जो ज़िंदगी है वो सेफ हो, उसको हिफाजती जितने भी इक़दामात हैं, जो मायार है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो उनको मुहैया हो, उनको अच्छी सैलरी जो है तनख्वाह जो उसके लिए मुख्तस हो, उसके लिए रेस्ट का टाइम हो। तो दोनों पिक्चर्स में आप पर कर सकते हैं। ये भी काम है और ये भी काम है, उधर देखें ये भी काम है। ये डिसेंट वर्क नहीं है इसलिए कि इसके पास जो है मालिक के पास स्टिक है। और वो जो पिछले वाला पिक्चर था, पिक्टोरियल व्यूज थी, उसमें ये नहीं थी, उसमें सेफ्टी थी, उसमें उनकी जान को जो है वो खतरे जो है वो लाहक नहीं होते थे। और यहाँ पे जो है खतरे हैं। ये देखें ये भी एक तस्वीर है और ये भी है, दोनों में आप फर्क कर सकते हैं। इसके लिए कोई सपोर्ट नहीं है और दूसरे वाले के साथ जो है सपोर्ट है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो उनके पास डंडा है। ये डिसेंट वर्क नहीं है। डिसेंट वर्क ये है कि बच्चे के साथ हमें अपनी गुफ्तगू जो है वो बेहतर बनानी है, उसके साथ जो हमारी अखलाकियात है उसके ऊपर हम आएंगे, उनके साथ जो बातें हम करेंगे ऐसा ना हो कि उसको हम जो टेस्ट है वो पहुंचाए, जो सोर टेस्ट, उनको हम हपा करें या परेशानी में मुब्तला करें या जो भी है, ऐसा ना हो कि फिर वो इसका जो लगन है काम ताकि वो डिस्टर्ब हो। ये बंदा काम कर रहा है, ऊपर से बारिश आ रही है लेकिन फिर भी ये काम कर रहा है। तो उसको ये देखना है कि
میں تو کام کر رہا ہوں، لیکن ہمارے ارد گرد جو ہے ایسے خطرات کون سے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ اس میں خطرے میں نہ پڑے ہم. اس کو جو تنہا ملی وہ توڑی تھی. ہاں بس یہ بچے ہیں. اس بندے کو جو سیلری یعنی جو ویجز ملی ہے، جو روپے ملی ہے، اس کے ارد گرد جو پکٹوریل ویوز ہے، جو پکچرز ہے، اس میں ایک کچن دکھائی دیتی ہے، دوسرا جو ہے اس کے بچے ہیں، تیسرا گھر ہے، اور دوسرے جو ہے وہ اور کامز ہے. تو اس کی جو سیلری ہے، جو تنہا ہے، وہ کم ہے، اور اس کے جو اخراجات ہے یا اس کے جو خرچے ہیں یہ اس کے اوپر زیادہ ہے. تو ہم نے کسی بھی انسان کو انسان کی طرح دیکھنا ہے، اس کی ویجز کو، اگر اس میں جتنی سکلز ہے تو ابھی یہ سوچ میں پڑ گیا ہے کہ ڈیپینڈنسی جو ہے، انحصار جو ہے، یہ بہت بڑھ رہی ہے. دن بدن جو ہے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، تو وہ سوچ میں پڑ گیا ہے. مالک سے کہوں کہ میری تنخواہ میں انکریز کرے، میری تنخواہ بڑھائیں، میری جو نیڈس ہیں، جو ضروریات ہیں، وہ ان کے مطابق نہیں ہے. اس میں وہ ڈرتا ہے، وہ دل میں ڈرتا کہ میں نے اگر امپلائر سے بات کی کہ میری تنخواہ، مالک سے بات کی کہ میری تنخواہ بڑھائیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ مجھے کہہ دیں کہ بس آپ جائیں، آپ کو سیلری نہیں مل سکتی. اس پروجیکٹ کا مین مقصد یہی ہے کہ ہم نے ان بچوں کو امپاور کرنا ہے، تاکہ یہ بچے جو ہے اگر مارکیٹ میں جائیں یا امپلائر کے ساتھ بیٹھیں اور کام شروع کریں، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ ان کے ساتھ پہلے بات کریں کہ میری تنخواہ کیا ہوگی. جو ہے یہ ٹرمز اور کنڈیشنز ہے، یہ باتیں جو ہیں یہ آپ کے اور میرے درمیان ہونی چاہیے، تاکہ میری بھی آپ سے وہ نہ ہو، گلا نہ ہو، اور آپ کا بھی نہیں ہو. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر فرض کرے دو بندے ہیں، ایک زیادہ قابل ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کی پوٹینشل جو ہے وہ کم ہے، وہ اتنا قابل نہیں ہے، اور دونوں کو ایک ہی تنخواہ ملے، تو یہ بھی اچھا نہیں ہے. ایکوٹی پہ ہم نے جانا ہے، انسان کو دیکھ کے، اس کی صلاحیت کو دیکھ کے، اس کی پوٹینشل کو دیکھ کے، اس کی نیڈز اور ضروریات کو دیکھ کے ہم جو ہے اس کو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اتنی سیلری دیں. لیکن ایسا نہیں ہے. فرض کریں اگر ہم حبیبہ سیلون میں فرسٹ دن پہ آئے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ میری تنخواہ بڑھائیں، ایسا بھی نہیں. وہ جو ہے، جو امپلائرس ہیں، جو مالکان ہیں، جو اونرس ہیں، وہ چیک کریں گے آپ کی پوٹینشلز کو، آپ کی صلاحیت کو. جب آپ میں صلاحیت ہے تو وہ ضرور آپ کے لیے تنخواہ بڑھائے گی، اور اگر آپ میں صلاحیت نہیں ہے، آپ ادارے کے لیے کچھ کام کر ہی نہیں سکتے، اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ آپ نہیں بڑھا سکتے، اس کا نام جو ہے ادارے کا آپ روشن نہیں کر سکتے، تو آپ ڈیمانڈ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے جو سکلز ہیں وہ ہمارے پاس ہوں، ہم اچھے سے اچھے سکلز جو ہے ہم گین کریں، اور اس کے بعد ہم جائیں اور امپلائر کو دیکھیں کہ میری یہ پوٹینشلز ہے، اور میں یہاں پہ آیا ہوں، تو آپ ایسا کریں کہ میرا، تو مجھے بھی آپ نے 40,000 دینی ہے. نہیں، ضروری ہے کہ بچوں کو چاہیے کہ وہ اچھے سے اچھے سکلز اور ہنر سیکھیں، اس ہنرز کو بنیاد بنا کے کہیں پہ امپلائر کے ساتھ بیٹھیں اور کام کریں.
लेकिन काम जुबानी जमा हर चाप नहीं करेंगे कि मैं इधर आया और आप ये भी ना पूछे कि मेरे खाने का क्या होगा, रिस्ट टाइम का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, और आप मुझे पैसे कितने दोगे, मेरे वालिदैन को पता है कि नहीं है। आपके वालिदैन को पता होना चाहिए, आपके रिश्तेदारों को, अगर आपके माँ बाप नहीं है, फिर आपके जो अल्टरनेट जो आपके केयर गिवर्स है, उनको पता होना चाहिए कि बच्चा कहाँ पे है, उसकी जिंदगी को ऐसा खतरा तो नहीं है, उसके जिस्म को ऐसा खतरा तो नहीं है, उसकी जिंदगी कैसे गुजर रही है, वो काम जो है जिसमें वो काम कर रहा है क्या वो इसके जिस्म के मुताबिक है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा है और हमने इसको बड़े बड़े कामों में लगाया जो कि ह्यूज वर्क है, जैसे बड़ी फैक्ट्री में जो काम है वो हो। हमने जाना है अपने स्किल्स के साथ, हुनर के साथ, और जहां पे भी हमें इंटरव्यू देनी है वहां पे हमने कितनी देनी है। लेकिन आपने ये डिमांड कभी नहीं करना है कि जो 11 साल या 12 साल से काम कर रहा है इस इदारे में, उसकी मुताबिक जो है मुताबिक से मुझे भी तनख्वाह दे। नहीं, वो एम्प्लॉयर की अंडरस्टैंडिंग है, वो यूँ समझ रहा है कि ये बच्चे में अगर पोटेंशियल है तो वो आपको इस सलाहियत की बुनियाद पे वो आपको सैलरी देगा। तो यूँ समझ रहा है कि ये मेरा गुलाम है, हम गुलाम नहीं है। अरस्तु ने कहा है कि हम गुलामी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो गुलाम बने हुए हैं उन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया है, उन्होंने अच्छे से अच्छे स्किल्स को गेन नहीं किया, उन्होंने हुनर नहीं सीखी, तो वो इसलिए गुलाम बन गया है। गुलामी से निकलने के लिए जरूरी है कि हम मार्केट को देखें और मार्केट के मुताबिक हम हुनर सीखें और उस हुनर को हम अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें। फर्ज करें एक फीमेल है और उसके घर में उसकी अलविताज से उन्होंने फुल टाइम दी, वक्त दिया, और वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने अखलाक और जो रिलेशनशिप्स हैं, जो ताल्लुकात हैं इदारों के साथ, इदारों के मालिकान के साथ, अपने जो सहेलियां हैं, क्या कहते हैं, फ्रेंड्स के साथ आपके जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग हो, वो प्रोफेशनल हो। ऐसा नहीं है कि उसमें ये है कि ये सीखती है और ये काबिल है, मैं क्यों नहीं हूँ। आप अपने ऊपर काम करें। तो इदारे यही चाहती है कि जो बच्चा है उनके स्किल्स इंप्रूव हो और उन स्किल्स को इस्तेमाल करें फ्यूचर में, और थोड़ी सी जो है वो बेनिफिट उसके घर में आ जाए। दूसरी है, इसमें ज्यादा है, उसकी जो डिपेंडेंसी है ना काम पे वो अभी ज्यादा है, उसको और मुशक्कत करना है ताकि जो नीड्स है वो पूरी हो। इसलिए कि इस बेचारे की सैलरी जो है वो इसकी पोटेंशियल और सलाहियत से कम है, इसलिए वो सोच में पड़ गया है। देखें मालिक ने क्या किया, उसका सर जो है वो स्टिक से दबाया। ये गुलामी है। ये क्या है? गुलामी है। ऐसा नहीं है। कुछ समझ आ गई इस वीडियो से? कोई बता सकता है फ्रेंडली? आप में से कोई भी हो? इधर आ जाए। जिस तरह के सारे स्टूडेंट्स ने शुरू से अभी तक जितना भी देखा है वो हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग कहीं पे अगर जाते हैं, कोई स्किल सीखते हैं, स्किल के बाद जब हम कहीं जॉब पर आ जाते हैं तो हम अपने जो हमारे हकूक़ हैं वो एक्सप्लॉइट ना हो।
हमें हमारे हुनर के मुताबिक, हमारे स्किल के मुताबिक, हमारी जितनी भी कैपेबिलिटी है, हमारी जिस्मानी कैपेबिलिटी, हमारे जहन की कैपेबिलिटी, उसके हिसाब से हमें हमारा काम लिया जाए। हम की गई है इन वीडियोज़ में कि अगर कोई कहीं पे जॉब करता है, कहीं पहले तो हुनर सीखता है, हुनर सीख के कहीं पे जब जॉब पर आ जाता है तो उसके भी अपने कोई हकूक़ होते हैं। ये नहीं है कि वो उसकी गुलामी में आ जाता है। अगर कोई किसी को अपने पास रखता है एज अ वर्कर तो वो उसका गुलाम नहीं होता। वो अगर काम करता है, अगर मालिक उसको सैलरी दे रहा होता है तो उसके एवज जो वर्कर होता है वो अपनी एफर्ट्स, अपनी एबिलिटी, अपनी जितनी भी पोटेंशियल्स हैं वो दे रहा होता है, उसके एवज उसको जो है वो मिल रही होती है उसकी सैलरी। तो ये सारा कुछ बताने की कोशिश की गई है कि काम वो होना चाहिए, जॉब वो होनी चाहिए जिसमें मालिक भी अपना सेटिस्फाई हो और जो वर्कर है वो भी सेटिस्फाई हो। मालिक को उसके जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसके हिसाब से आप उसको काम करके दो, और जो वर्कर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मैं मेहनत करूंगा, मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो उस हिसाब से जो है वो एक माहौल होना चाहिए। ये ना हो कि बर्डन हो कि आप मतलब गुलाम नहीं है। जिस तरह से बताया गया है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप अपना प्रॉब्लम अपने मालिक के साथ शेयर ना कर सको। इस तरह का माहौल फ्रेंडली होना चाहिए कि भाई अगर आप अपनी एबिलिटीज़, अपनी स्किल शो कर रहे हो तो आपका मालिक भी अप्रिशिएट करे कि भाई हाँ वाकई इसमें ये चीज़ है इसको। और दूसरी ये बात कि यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है कि अगर वर्कर्स हैं, दोनों सेम काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें इक्वलिटी होनी चाहिए। उनमें अगर सैलरी उनको दी जा रही है तो दोनों की सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर किसी की पोटेंशियल कम है या किसी वजह से वो लो उसमें है तो मतलब इंसाफ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इनमें इस चीज़ में बताई गई हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ऑडियंस से कोई बता सकता है? शुरका से कोई बता सकता है? वॉलंटियरली बताएं, रज़ाकाराना तौर पे बताएं कि इस वीडियो से आपने क्या सबक सीखा। जी इसमें बताया गया है जी इसमें बताया गया है कि हमें अगर हम कोई काम करते हैं तो हम उनके गुलाम नहीं हैं, हमें अपने राइट्स मिलने चाहिए। हम अपने राइट्स मांगते हैं, वैसे ही जिधर हम काम कर रहे हैं हमें उनके साथ भी वैसे ही माहौल रखना चाहिए। जो उनकी एक्सपेक्टेशन है मैं वो कंप्लीट करूँ। जबरदस्त जबरदस्त। देखिए बेटे प्लीज, दो आर है, एक राइट जो हक है, ये हमने मतलब ये पैरेलल है। ये ऐसा नहीं है कि अगर हम जाए हकूक के बारे में ये करते हैं वो करते हैं कि हमें अपना हक दो, ये दो। भाई आपने क्या किया है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, क्या वो आपने सही तरीके से फुल की है? क्या वो आपने कंप्लीट की है, मुकम्मल की है, या वो आप कर रही है जो हक आप मांगती है? दो बातें हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, एक राइट्स है। दोनों को हमने एक ही नजर से देखना है। हम पहली जो है वो जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करेंगे, हम अपने आप को अकाउंटेबल बनाएंगे कि ये मेरी जिम्मेदारी है, और फिर इसके बाद में राइट्स के बारे में उस एम्प्लॉयर के साथ बात करूंगा कि मेरी ये हुकूक है। ठीक है? ऐसा भी नहीं है कि बस मैं आया स्किल लेके और मैं एम्पावर हो गया और आप मुझे अपना हक दो, मैंने कुछ काम करना भी नहीं है। ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से है। इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन, दोनों तरफ से है, यहां से भी है और यहां से भी है। तो आखिर में दो तीन अल्फाज, और वो ये है कि हमने तो डिसेंट वर्क के ऊपर बात की और वीडियो भी देखी, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है, जो तारीफ है, वो ये है, हमने ऐसा माहौल पैदा करना है जिसमें मेल और फीमेल यानी मर्द और औरत दोनों को फ्रीडम हो। ऐसा फ्रीडम कि वो ये बता सकता है कि मेरी सैलरी कितनी होगी। फ्रीडम इन अ सेंस, फ्रीडम वो है, वो बता सकता है कि मुझे आराम का मौका दो, वो बता सकता है कि मैं बीमार हूं और मैंने घर जाना है या मैंने कल नहीं आना है। ये फ्रीडम है। इक्विटी, इक्विटी ये है कि ये
میرے سے بڑھ کر ہے, زیادہ ہنرمند ہے, میں کم ہنرمند ہوں, اس کو تنخواہ ملے گی 20,000, مجھے ملے گی 10,000. یہ ایکوٹی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں مطلب 16 کلاس پاس ہوں اور میرے پاس اتنے سکلز ہے اور دوسرا جو ہے وہ میٹریکولیٹ ہے, اس کے پاس کوئی ایسی ٹیکنیکل سکل نہیں ہے اور دونوں کو آپ نے سیم سیلری دینی ہے. یہ ایکوٹی نہیں ہے, یہ ناانصافی ہے. ایکوٹی یہ ہے بندے کو دے کے, اس کے ہنر کو دے کے اور اس کو وہی ویجز جو ہے وہ دے. سیکیورٹی, یہ وہ سیکیورٹی نہیں ہے جس میں بندوق پسٹل یہ وغیرہ, یہ وہ سیکیورٹی نہیں ہے, یہ جاب سیکیورٹی ہے. جاب سیکیورٹی یہ ہے کہ میں نے ایتھیکلی اخلاقیات کو دیکھ کے اپنے مالک کے ساتھ میرے جو تعلقات ہیں وہ استوار کرنی ہے. پروفیشنلزم جسے ہم کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں نے یہاں پہ آنا ہے اور ٹائم کا پابند بھی میں نہیں ہوں گا, میں نے جانا بھی ہے اور مجھے تنخواہ بھی پورا دے گا. نہیں, یہ 2 وے ٹریفک ہے. آپ بھی کریں گے, یہ بھی کرے گا, تب یہ سلسلہ جو ہے آگے بڑھے گا, تب یہ کام جو ہے یہ ٹھیک ہوگا, تب ہمارا جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے, جو ماحول ہے وہ ٹھیک ہوگا. سوشل سیکیورٹی یہ ہے کہ میں انشور ہوں کسی بھی کمپنی کے ساتھ, یا مجھے وہ پیسے دے گی جو میری ہیلتھ بینیفٹس ہے, صحت کے جو بینیفٹس ہیں, اس کے اگینسٹ مجھے ادارہ پیسے دے گا, میرے والدین کو دے گا اگر میں نہ ہوں, میرے بعد, میرے مرنے کے بعد, انجریز کے بعد. اگر میں فرض کرے انجری آ گئی, مطلب کام کے دوران کوئی اگر زخمی ہوا, تو یہ ضروری ہے امپلائر کے لیے کہ وہ جلدی لے کے جائیں اور اس کے جو صحت کے جو بینیفٹس ہیں وہ ان کو مہیا کریں. یہ سوشل سیکیورٹی ہے. ہیومن ڈگنیٹی, ہم نے ہر انسان کی عزت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے یہ ادارہ ہے, اس کے رولز سے, پرنسپل سے, اس کو ہم نے اپنانی ہے. تو بس ہم اپنا قصہ جو ہے وہ ختم کرتے ہیں اس لفظوں پہ کہ ہم نے کسی بھی امپلائر کے پاس اگر جاب کے لیے جانا ہے تو اس کے ساتھ ہماری ریٹن ایگریمنٹ ہو, اس کے ساتھ ہماری لکھ میں کوئی ایسی باتیں ہوں جو ہم نے ابھی بیان کی, اور جو پروموشن ہے اس کی وہ ہم دوسروں کو بھی کہیں گے کہ ہماری جو آواز ہے ادارے کی وہ آگے بڑھائیں. تھینک یو, شکریہ جی. رضاکارانہ ہوا ہے, خاص کر چکم راغلی دی انٹرویوز دپارا اغیث ویل پکار دی جنن تاسو ورکے اول آشنا خبروں میں از دکڑی ناغا ہوا ہے. چاچا یو خبرم جی سر مونږ ته پکار دي چې مونږ هغې لمکار وکړو, هغې ته پکار دي چې زمونږ رایټس باندې پوه شي, او داسې نه ده پکار چې مونږ هغې دپاره هسې نه کوو بیا مونږ خپل فرمایشونه شروع کړو چې مونږ ته دام پکار دی او دام پکار دی. ٹھیک. او د ډیسنټ ورک حوالې سره دې څه زده کړه؟ یو 2 خبرې په ډیسنټ ورک باندې. فرض کړئ تاسو لاړئ حبیبا ته لاړئ, نوکري غواړئ, تاسو به څه وایئ؟